We also undertake some architectural drawings, RCC drawings, as well as 3D designs. This is the ongoing project in association with current builders. Also, we also organize award ceremony for our students to celebrate their success in their life. We also organize job fairs in various cities all over Maharashtra so that students can get various opportunities in our field. We have also given scholarships to almost 500 merit students who are from rural background. Here are some details of our courses that are available in our institute. We are providing e-tendering in government sector. These courses are available in both offline as well as online form. And here are some various categories under this course. We also provide you very tendering in ZP, PWD, MSCB, MIDC portals. There are also courses available in various government sectors like estimation course, tender working, government billing, as well as BPMS portal. We also provide construction project management courses. That is, we called it as site internship, and it is available in various durations like 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, or it can also last for 2 years. It is also this site internship course is also available in offline mode. You can directly go on the site and go through that project. We are also providing you cost engineering as well as building projects. Under this cost engineering project, we are providing you quantity surveying, bar bending schedule, tendering and contracts, budgeting, as well as billing. We are also providing structural designing, which is available in both online as well as offline format. It is also variable in various durations. We also provide you some software courses like AutoCAD, Revit, Advanced Excel, ERP for construction, 3ds Max, government billing, as well as government estimation. If you are not able to enroll for any of these courses, you can also go for self-learning video courses like Excel for civil engineers, AutoCAD, quantity surveying, civil engineering basic to update, construction project management, campus to corporate, as well as Mahatenders portal training. We are also providing you construction business courses like building construction techniques, real estate valuation, painting technology, professional painting contractor course, interior designing, landscape designing, waterproof contractor, real estate, as well as store management. So today now we are gathered here for a webinar on painting technology. This course duration will be for 1.5 months, and the time duration will be 7 to 9 p.m. in the evening. It is available in both online as well as offline medium. The batch will be starting from 28th December 2020. You can book for this course from internship app that we provide, and the fee structure will be disclosed in the last session of this webinar. So let me introduce you to our painting technology mentor, Shri Ujjwal Tawde sir. He has done his MSc in nuclear chemistry from Pune University. He has completed his master's in marketing management from Pune University. He has an overall experience of 45 years. He has worked with Paints Limited for 36 years in marketing department. He has been a consultant to Coating Specialities Limited, Kupsa Coating Private Limited. He has been a director at Elite Private Limited. He has been a visiting faculty at our institute as well as University of Pune, Shivaji University, Yashoda, Midcon, All India Institute of Local Governance, Modern College of Engineering, Builders Association of India,
Indian Pest Control Association, as well as he has been a corporate trainer. So now let me hand over this session to Ujwal Tawde sir. Sir, you can continue now. Okay, thank you. Okay, sir, welcome. Thank you very much for introducing me Okay, sir. uh, with a great detail which I had passed on. I think the language to be used for communication, uh, will it be English, Marathi, or Marathi English mix, or Hindi English mix? Let me know Mara- about this. Marathi also okay, sir. Marathi is okay. थोडं इंग्लिश थोडं मराठी असं मार इंग्लिश Yes, बोलू आपण. yes, 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 sir. Okay. Good evening, all of you. Uh, the total number of participants I can see is around 36. It's a good number. Uh, I now recollect when I go back, बरीच वर्ष झाली मला पेंट इंडस्ट्रीमध्ये आहे मी. साधारण 46 वर्ष मी पेंट इंडस्ट्रीमध्ये होतो आहे अजूनही. I think that this industry has flourished in India. इंडियामध्ये पेंट इंडस्ट्री ही अत्यंत फास्ट ग्रोईंग इंडस्ट्री आहे असं मला वाटतं. जे आकडे येतात त्याच्यावरनं कळतं की एशियन पेंट्स इज नंबर 1, मग बर्जर पेंट्स इज नंबर 2, नंबर 3ला नेरोलॅक, ICI पेंट्स वगैरे आहेत. मी या कंपन्यांची नावं तुम्हाला सांगणार आहे. आय विल बी टेलिंग द नेम्स ऑफ दिस मेजर कंपनीज इन इंडिया अँड अब्रॉड ऑल्सो. But let me tell you what I'm going to tell you within these 45 minutes. There'll be three different topics which I'll be dealing with. The first topic is the scope for a painting contractor. पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टरच्या व्यवसायाचा काय स्कोप आहे मार्केटमध्ये, किती डिमांड आहे त्याचं, त्याला किती मागणी आहे पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टरला. दुसरा विषय मी हाताळीन, पहिल्यांदा तुम्हाला बेसिक नॉलेज पाहिजे की रंग म्हणजे काय. यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ पेंट. व्हॉट इज पेंट? आय विल बी डीलिंग विथ दॅट प्रिलिमिनरी of the knowledge base for knowing about paint. And the third section which I'll be dealing with is making profits out of paint. माझ्या आवडीचा विषय आहे, कारण धंदो सुकाम करवो असं माझे मालक म्हणायचे. सुरुवातीलाच एक मी आठवण सांगतो. आय विल टेल यू माय गुड ओल्ड मेमरी वेअर मी जेव्हा यंग होतो, मी पहिल्यांदा 1-1.5 वर्ष मी एका कॉलेजमध्ये लेक्चरशिप केली आणि देन आय जॉईंड एशियन पेंट्स. जवळजवळ 250 मुलांमधनं मी सिलेक्ट झालो होतो. आय जॉईंड एशियन पेंट्स. आय वॉज गिवन पुणे मार्केट टू डील विथ. आणि पुण्यामध्ये एशियन पेंट्सच्या मालकांनी बंगले बांधायला सुरुवात केली. आणि हे बंगले बांधताना दे यूज टू कम टू पुना क्वाईट ऑफन. आणि एशियन पेंट्सचे पहिले मालक सूर्यकांतबाई दाणी. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना क्लिअर? Yes, sir. येतोय ना? Yes, Somebody has said that he has some problem. yes, I sir. don't know. There must be a problem with his connectivity. Okay. Yes, yes. Most of you are listening to me. Somebody can unmute and tell me, are you listening to me? Am I clear? सरांचा व्हॉइस क्लिअर आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये फक्त मेन्शन करा येस किंवा नो मध्ये. Mention in the chat box. आपल्याकडे लिमिटेड टाइम आहे. Yes, 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 sir. So I'll press to proceed. Yes, that's great. Palak, thank you very much.
आता मला एक आठवण सांगायची होती की आय वॉज ट्रॅव्हलिंग विथ माय फर्स्ट ओनर, म्हणजे पहिले मालक आमचे एशियन पेंट्सचे सूर्यकांतभाई दाणी. ऑल 4 डायरेक्टर्स ऑफ एशियन पेंट्स वेअर गुजरातीज. गुजरातमध्ये एक बनिया म्हणून कम्युनिटी आहे बघा, सगळ्यांना बनिया शब्द माहिती आहे. बनिया म्हणजे कंजूस असं समजलं जातं. तो बनिया आहे म्हणजे व्यापारी आहे आणि कंजूस पण आहे. आणि मला असं वाटतं की कंजूस असणं म्हणजे क्वालिफिकेशन आहे माणसाचं, त्यात वाईट काही नाही आहे. आणि व्यापारामध्ये बिझनेसमध्ये कंजूस राहणं महत्वाचं आहे माझ्या दृष्टीने. मी अजूनही कंजूस आहे, माझ्याकडे पैसे भरपूर आहेत, पण देताना 10 वेळा विचार करतो. आणि मला हा मेसेज माझ्या पहिल्या मालकांनी दिला होता. जेव्हा मी त्यांच्या गाडीतनं चाललो होतो तेव्हा ते अचानक मला म्हणाले, अचानक, की उज्ज्वल भाई, थोडस गुजरातीत बोलणार आहे मी तुमच्याशी, कारण गुजराती ही व्यापारी भाषा आहे. मी गुजरातचा, मी बडोद्याचा, मला गुजराती अस्खलित येते. आता साहेब माझे पहिले मालक म्हणाले की उज्ज्वल भाई, તમે તો મોટા માણસો, मी मोठी माणसं, તમે તો MSc ને MBA કરેલું છે, MSc MBA શીખેલા, ઉજ્જવલ ભાઈ તમે તો મોટા માણસો. હું શું, मी कोण, હું શું 9वी पास ने 10वी नापास. मी एकदम दचकलो, म्हटलं एशियन पेंटचा पहिला मालक हा 10वी नापास म्हणतोय आणि अभिमानाने सांगतोय, अभिमानाने. आणि नंतर लक्षात आलं की ह्या माणसामध्ये काहीतरी वेगळ्या क्वालिटीचं असतं, त्याशिवाय एवढी मोठी कंपनी उभी करणं कसं काय जमलं असेल. आणि तिथून माझा प्रवास सुरू झाला. फ्रॉम देअर आय traveled with my first owner for first 10 years. आणि त्या व्यापारी गोष्टी मला सूर्यकांतभाई दाणींकडनं शिकायला मिळाल्या. मी आहे मराठी, अगदी पुण्याचा आहे, पण मी गुजरातमध्ये शिकलो, गुजराती बोलतो आणि व्यापारी तत्वामधनं मी मोठा झालो. तीच व्यापारी तत्व मी माझ्या या कोर्समध्ये पार्टिसिपंट्सना शिकवणार आहे. म्हणजे कंजूस कसं राहावं आणि कसं काय करावं. मला आठवतं की ते जेव्हा म्हणाले तेव्हा मी वाकून नमस्कार केला त्यांना, साहेबांना. म्हटलं, साहेब, मी कुठला मोठा माणूस तुमच्या समोर, तुम्ही मोठे आहात. आमच्यासारखे 280 MBA तुम्ही नोकरीला ठेवलेत हाताखाली. बघा, माझा स्क्रीनवर हात दिसत असेल, अशा हाताखाली ठेवलेत. धंद्याचा हाच फायदा असतो बघा. तुम्ही मालक असता, तुम्ही वर असता, तुमच्या हाताखालची माणसं कशी तुम्ही सांभाळून त्यांचा उपयोग करून तुम्ही धंदा करता हे महत्वाचं. आणि मग दुसऱ्या मुवमेंटला साहेबांनी मला आणखी एक प्रश्न विचारला की धंदो सुकाम करो, धंदा कशाला करायचा, कशासाठी धंदा करायचा. सर, मी प्रश्न विचारलाय विद्यार्थ्यांना. एखादा विद्यार्थी, 1-2 विद्यार्थी अनम्यूट होऊन मला त्याचं उत्तर सांगते. धंधा किसके लिए करने का, क्यों करना है धंधा, बोलिए. जिसमें गट्स है वो आंसर देगा मुझे अनम्यूट करके. धंदा कशासाठी करतात. हा, एनीवन कॅन रेज युअर व्हॉइस. यस, बोला बोला. बोलणाऱ्याची माती सुद्धा विकली जाते आणि न बोलणाऱ्याचं सोनं सुद्धा कोपऱ्यात पडून राहतं. जो बोलतो त्याची माती सुद्धा विकली जाते. माझे सगळे विद्यार्थी आतापर्यंत 480 कॉन्ट्रॅक्टर मी डेव्हलप केले महाराष्ट्रात. सगळ्या विद्यार्थ्यांना मी बोलायला लावतो, बोलल्याशिवाय नाही जमत तो. हा, राहुल, बोला, धंदा कशासाठी करायचा, इथून आपण सुरुवात करू. आपल्याकडे
फक्त 35 मिनिटं राहिली आहेत. हां, sir, can you speak in English or Hindi? Yes, I can. I know English. Yes. Why one should go for business? Why? What is the use of going in business? Come on. Why one should go for business? Now you answer. I have started speaking in English. I have started speaking in English. Please answer. What is the need of your going in business? Why we should go for business? आता मी 1 मिनिट थांबीन आणि माझं मीच उत्तर देईन. मला त्यावेळेसचं उत्तर मिळालेलं माझ्या मालकांनी दिलेलं. My owner answered me in one single sentence. The business has to be done, organized by profit. Here, when you say it is meant for growing, somebody has answered growth. Number one reason why one should go for business is you make business to make profits. Profit, profit, profit. Like that, some movie had said, entertainment, entertainment, entertainment. There are 3 words, and all 3 words are same. Profit, profit, profit. When I conduct this course on painting technology, I will always relate my teachings on profits, making profits. Business is not social work. So, in nutshell, in painting business, the general profit margin ranges from 15% to 25 to 30%. Is it a good profit? You can send me a message on screen. Average 20%. कमाना है किसको? जिसमें दम है वो कमाएगा, जिसको इच्छा है वो कमाएगा. And that's why I say paint application is a good business. बढ़िया बिजनेस है. आप लोगों के लाइफ को रंगीन बनाते हैं. Very interesting business. You make their homes colorful. You make their homes energetic. You make their homes refreshed. और ये पेंट बिजनेस कहाँ कहाँ चलता है हम लोग देखेंगे. Somebody should enter the person who is admit. Please admit somebody. No, sir, we will continue. No. Yeah. So now, if I think that the scope of painting is earning 20% profit margin, that is number one. And margin पैसे मिलते हैं. मेरे अनेक स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की कार परचेस की है. मेरे घर पे गुरु पूर्णिमा सबको मालूम है. गुरु पूर्णिमा, गुरु को मिलने आते के शिष्य लोग. तो गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर के सामने गाड़ियां लगती. गाड़ियां कहाँ से आई? प्रॉफिट. तो ये पहली चीज मैंने उनको पढ़ाई थी कि प्रॉफिट कमाओ, सोशल वर्क मत करो. कहाँ कहाँ पेंट चलता है वो भी देखना. कितना वास्ट स्कोप है पेंटिंग लाइन. मुझे मालूम है कि मैं अभी इंटरेक्ट नहीं कर सकता या आपके आंसर्स नहीं आ रहे, लेकिन मुझे आपको एक एक करके बताना है कहाँ कहाँ स्कोप है. स्कोप कहाँ है? एक तो आपका लोगों के घर पेंट करना, वो एक पहला स्कोप है. इंटीरियर एक्सटीरियर, लोग जहाँ लोग रहते वो इंटीरियर एक्सटीरियर.
तो लोग कहाँ रहते? पूरे क्राउडेड सिटी में अपार्टमेंट्स है, अपार्टमेंट, सिंगल बिल्डिंग अपार्टमेंट, वो एक स्कोप है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, जिसको मैं CHS बोलता हूँ, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अभी चालू है काम। मेरा एक पास स्टूडेंट ही कर रहा है। देर आर 12 बिल्डिंग्स विच ही इज पेंटिंग। तो स्कोप क्या है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, 12 बिल्डिंग की है, उसमें करीब 18 लाख का काम है। और 18 लाख का काम सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर, और इंटीरियर का पूरा काम निकल गया तो 25 लाख तक जाएगा। नाउ इमेजिन, ये काम अगर 3 दिन में नहीं कर सकते हम लोग, बरोबर ना, उसको लगेंगे कुछ महीने। तो जितने कम टाइम में मैं काम करूंगा ये बिल्डिंग पेंटिंग का, उतना मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। सीधी बात है, टाइम इज मनी, टाइम की कॉस्ट होती है। तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अगर 18-20 लाख का काम है तो 20 लाख के ऊपर 20% मार्जिन पकड़ा हमने प्रॉफिट, तो 4 लाख रुपए हो गए ना भैया। 4 लाख में ये आल्टो, ब्रांड न्यू आल्टो मैं खरीद सकता हूँ। तो ये स्कोप है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट बिल्डिंग। आणखी और एक स्कोप है, देखो, पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे काम चलते रहते हैं। उनकी स्कूल्स है, उनके गार्डन्स है, उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, PMC जिसको बोलते हैं, उनके यहाँ बहुत सारा काम चलते रहता है। वहाँ स्कोप है। उनको स्कूल्स पेंट करनी है, गार्डन में पेंट करना है, वहाँ स्कोप है। पूना में कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड काम देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। उनकी भी गार्डन्स है, उनके कुछ बिल्डिंग्स है, उसका पेंटिंग हो सकता है तो वो काम मिलता है। पूना में बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, इसको मैं बोलता हूँ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, सदर्न कमांड। इतना बड़ा स्कोप है वो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। 50-60 करोड़ का बजट रहता है सदर्न कमांड का, पेंटिंग का। तो पूना एरिया में करीब अगर 5 से 10 करोड़ का मार्केट रहेगा सदर्न कमांड का, तो उसमें से 60-70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का काम आपको मिल गया, तो 1 करोड़ में से 20 लाख प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। मैं रिपीट करता हूँ, अपार्टमेंट बिल्डिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स, सदर्न कमांड, और एक है PWD, सरकारी खाता। वहां थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है, लोग करते हैं। पब्लिक वर्क्स, PWD, उनके काम तो चलते ही रहते, उनके काम चलते ही रहते। PWD के काम है। फिर रोड के काम है, देखो रोड को भी पेंट लगता है। सर मला टाइम अप झाला की त्याच्या आधी एक 10 मिनिटं सांगा, बरं का सर? हो सर, सांगतो. हाँ, रिमाइंड मी Yes, sir. 10 minutes earlier. Okay, Yes, 10 sir. minutes. We will. Yes, sir. I was talking of रोड मार्किंग पेंट। आप जब हाईवे पे जाते हैं ना, तो हाईवे पे वो पट्टे रहते व्हाइट वाले, व्हाइट कलर के पट्टे रहते हैं,
हेलो। मेरे ख्याल से सर की कनेक्टिविटी सर ज्वाइन कर रहे हैं फिर से। हम एक टॉपिक पे थे की कितना स्कोप है, म्हणजे किती स्कोप आहे आपल्याला या पेंटिंग च्या फील्ड मध्ये। सर तुम्ही जॉइन झालात? हॅलो सर, तुमचा आवाज येत नाहीये। हॅलो हॅलो, आवाज येतोय? हाँ सर, हाँ Hello? आता है। यस सर, यस सर, आता यायला लागलं। Can you hear me now? Okay. यस सर, यस I सर। was on the scope. Scope for your business as a painting contract. I was now building 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom flat, apartment buildings, cooperative housing societies. I was on PMC, Pune Municipal Corporation, schools, gardens, वगैरह. I was also on army establishment. I was with cantonment boards. I was with road marking paint. I was with PWD department. अभी एक बड़ा स्कोप है. In this session, I will be completing this process at factory level. Even our हेलो। अभी आप सोचिए एक इंडस्ट्री है, बॉम्बे पुणे हाईवे पे जाएंगे आप, अल्फा लेवल में मेरे एक दोस्त के 7 पेंटर पूरे साल भर काम करते रहते, पूरे साल भर उनका मेंटेनेंस पेंटिंग चलते रहता है। और अगर बड़ा काम निकला, फैक्ट्री पूरी पेंट करनी है अंदर बाहर से, तो वो एक काम अलग रहता है कॉर्पोरेशन, वो फैक्ट्री पेंटिंग का। लेकिन और एक काम मिलता है जिसमें कैन यू हियर मी? येस सर, थोडा डिस्टर्बन्स येतोय पण येतोय आवाज। केवल से येतोय का? हाँ ओके, आई विल ट्राई एंड जस्ट कंप्लीट माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो स्कोप है, मैं आया था कहाँ तक, फैक्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स तक। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉर्पोरेट पेंटिंग का। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने यहाँ झारखंड में एक कंपनी है फॉक्सवैगन, आप सभी लोगों को मालूम है फॉक्सवैगन। तो फॉक्सवैगन का फैक्ट्री का रीपेंटिंग निकला था बीच में। तो 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को डिवाइड करके काम दिया गया, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को डिवाइड करके काम दिया गया। करीब करीब 12 लाख का काम मिला। अरे 2.5 लाख रुपया निकल गया ना भाई, 2 महीने में 2.5 लाख किस काम का है? अच्छी बात है, बाकी के काम छोटे मोटे चालू रहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट्स और फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ये काम होता है। कभी कभी नई फैक्ट्रीज बनाई जाती है, नए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, नए होटल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े। इसको मैं टर्न की प्रोजेक्ट्स बोलता हूँ। टर्न की प्रोजेक्ट्स में पेंट का बहुत बड़ा डिमांड है। एक फैक्ट्री बन रही थी वर्लपूल, अगर नगर रोड पे आप जाओगे तो वर्लपूल करके फैक्ट्री है। मुझे याद है मैं जब रिटायर होने वाला था उसके पहले की बात। तो वो पूरी फैक्ट्री हमने पेंट की, उसका इंटीरियर, उसके ट्रसेस, ऊपर जो गर्डर्स रहते हैं वो गर्डर्स, ट्रसेस, पूरा स्ट्रक्चर, वो हमारे दोस्त ने पेंटिंग किया। और उसका जब बिल्डिंग बन गया तो वो बिल्डिंग का ऑफिस का पेंटिंग भी उसके हाथ में आ गया।
ये पेंटिंग जो टर्न की प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोजेक्ट, इसका भी होता है। हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये बहुत बड़ी सेगमेंट है। हॉस्पिटल्स तो पेंटिंग चलते ही रहता है, ध्यान में रखो। पूना में कितने हॉस्पिटल्स है? ए टाइप के है, बी टाइप के है, सी टाइप के। ए यानी बहुत बड़े हॉस्पिटल, जैसे बिरला हॉस्पिटल या यहाँ का ससून हॉस्पिटल या मंगेशकर हॉस्पिटल या केईएम हॉस्पिटल, ये बड़े हॉस्पिटल्स है। फिर बी टाइप के छोटे हॉस्पिटल्स है, सी टाइप के उससे भी छोटे हॉस्पिटल्स है। लेकिन हॉस्पिटल का पेंटिंग का काम पूरे 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 साल भर चलते रहते। होटल्स, होटल्स में भी ए बी टाइप के होटल्स है, ए बी सी। ए टाइप के होटल्स बहुत बड़े बड़े होटल्स, उसमें आपको एंट्री मिलना यानी उसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे, तो आप एंटर कर सकते। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनके खुद के पेंटर एम्प्लॉय करते हैं। छोटा छोटा काम रहता है, एक आधी रूम में टचअप मारना, ये करना, तो उनके पेंटर्स रहते हैं। लेकिन जब बड़ा काम निकलता है ना, 10 रूम का पेंटिंग है, 15 रूम का पेंटिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला लेते हैं। हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स बहुत बढ़िया मार्जिन देता है। रेस्टोरेंट्स में इंटीरियर का पेंटिंग आप करके दिया, एक तो रात को करना पड़ता है, आपको रात को काम करना पड़ता है रेस्टोरेंट्स का, और लोग करते हैं और अच्छा मार्जिन मिलता है। वहां पे पैसे की कमी नहीं है, रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में या हॉस्पिटल्स के, होटल्स में पैसे की कमी नहीं। हमारे बिजनेस में यानी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में एक साधारण एक रनिंग बिल डाला जाता है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि इंटीरियर एक्सटीरियर पेंटिंग आप कर रहे हैं तो उसका हर 15 दिन में एक रनिंग बिल डाल देने का। आपने मेजरमेंट्स लिए है, सब पोर्शन की मेजरमेंट्स है, तो इतना इतना काम हो गया 15 दिन में, इतना इतना काम कंप्लीट हुआ, तो मेरा ये पेंटिंग हो गया है, उसका मुझे पैसा प्लीज दे दो साहब। 15 दिन में वो आप रनिंग बिल का पेमेंट रिकवर कर सकते। कई कंपनी जो बड़ी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, कॉरपोरेट्स है, वो शायद 30 दिन में आपको पेमेंट देंगे। लेकिन कहीं मेरे होशियार स्टूडेंट जो है ना, वो 8-8 दिन में पेमेंट निकालते हैं गिराहक से। छोटे गिराहक है, उससे पैसे जल्दी मिलेंगे। 2 बेडरूम 3 बेडरूम का फ्लैट रहेगा, उसके पैसे ज्यादा जल्दी मिलेंगे। तो ये सब हो गया स्कोप। स्कोप इज वास्ट, बहुत बड़ा स्कोप। एमआईडीसी के काम है, एमआईडीसी जो एरियाज है पुणे में, तो मैं बोलता हूँ कितनी 7-8 एमआईडीसी बड़ी है, वहाँ काम चलते ही रहता है अंदर। मेरा एक स्टूडेंट है, वो सब बाबा लोगों के पीछे रहता है। बाबा लोगों के आश्रम रहते हैं ना, वो सब आश्रम का पेंटिंग करते रहता है भैया। होशियार लड़का, मुझे याद है, 8 साल पहले मेरे बैच में आया था। पूरा पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र का, गुजरात तक जाता है वो। एक 7-8 पेंटर की बैच लेके वो बाबा के आश्रम को पेंट करके आता है। पैसे है ना, पैसे है वहाँ पे, क्यों छोड़ने का। तो पेंट लाइन का स्कोप है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ऐसा वास्ट है, और वर्टिकल भी है, ऐसा ऊंचा है और ऐसा फैला हुआ है। ग्रेट स्कोप। अभी ध्यान में लो आप सब लोग, इतना बड़ा स्कोप है, तो किस चीज का स्कोप है आप देखिए। इंटीरियर पेंटिंग में इमल्शन पेंट, एक्रेलिक इमल्शन पेंट वगैरह लगाते हैं। इंटीरियर पेंट में डिजाइन ड्रॉ करते हैं लोग, वो डिजाइन को हम लोग बोलते हैं टेक्सचर पेंटिंग, स्टेंसिल पेंटिंग।
टेक्सचर पेंटिंग में आपको मालूम है 40 से 60% मार्जिन है। टेक्सचर पेंटिंग, एक वॉल पे आप टेक्सचर का करके देंगे तो करीब करीब 60%, क्या कभी कभी 100% मार्जिन निकलता है। बहुत बड़ा स्कोप है ये। आर्किटेक्चर के पास से ये काम आते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स के पास। और वो टेक्सचर या स्टेंसिल में बहुत माहिर है मेरे स्टूडेंट्स। वो गाड़ी में आते, गाड़ी में जाते। एक भाई ने तो वैन बनाया उसका, वैन में सब सामान लेके जाता है, दौड़ता है, टेक्सचर लगा के आ जाता है। और मुझे ये बात खुशी है कि पेंट लाइन में अपने हाथ साफ रहते। साफ यानी जो डीलिंग है मार्केट में, आप सब माल आपको बिल से मिलेगा। चिट्ठी चपाटी, नंबर 2 का पैसा, नंबर 1 का पैसा, ये सब नहीं, बहुत कम है। हर एक सप्लायर डीलर जो है वो आपको पक्का बिल दे देगा। जीएसटी पीएसटी वो सब मिल जाएगा। जब मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लूंगा, आपका कोर्स लूंगा, तब जीएसटी बिलिंग का प्रोसीजर कैसे रहता है हमारे पेंट धंधे में, वो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो ये साफ सुथरा बिजनेस है, उसमें बहुत घाटे का धंधा नहीं है। ये घाटे का धंधा बहुत नहीं है। बहुत सारे धंधे ऐसे रहते हैं वो घाटे में जाते हैं। ये धंधा बहुत बार घाटे में नहीं जाता। दिमाग से काम करो, दिमाग से पैसे कमाओ और श्रीमंत बनो। क्यों नहीं? पैसा कमाना कुछ बुरी बात? और पैसा कमाना है भाई लोग तो एंटर इन पेंट एप्लीकेशन बिजनेस। साफ सुथरा, और आपको एक मस्त इमेज मिलेंगी। मैं तो बोलता हूँ इज अ डेकोरेटर। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोला कि यू राइट ऑन योर विजिटिंग कार्ड डेकोरेटर्स एंड पेंट एप्लीकेटर्स। कुछ एक स्टूडेंट ने तो लिखा है स्पेशलिस्ट इन डिजाइनर पेंटिंग। माय गॉड, बहुत बढ़िया बिजनेस है डिजाइनर पेंटिंग, यानी टेक्सचर्स और स्टेंसिल का ही काम करता है। एक तो मेरा स्टूडेंट है तो वो सिर्फ शेड का रिकमेंडेशन करता है, कौन सा शेड लगाया जाए अंदर, ये ब्लू होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, लाइट ग्रीन होना चाहिए, उतना सिर्फ कंसल्टेशन देता है। उससे वो धंधा कर रहा है। भैया गाड़ी चलाता है। ये सब छोटे छोटे ऑफशूट बिजनेसेस भी पेंट लाइन में है। और अगर आप इंटीरियर पेंट करते, एक्सटीरियर पेंट करते, तो आपको मजदूर भी तो चाहिए। मैं मेरे ट्रेनिंग के स्कोप में बोलूंगा ये मजदूरों को हैंडल कैसा किया जाता है। ये कहाँ से मजदूर आते हैं? पूना में करीब 10-1 हजार पेंट के मजदूर है जो यूपी बिहार से आए हैं, जो कोथरूड में, हाँ वारजे कोथरूड वगैरह उस काचे कुचे में है। कहाँ से उनको ढूंढ निकालना मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ गया पेंटिंग में, मुझे मालूम है कहाँ से आते। कुछ पुराने मेरे दोस्त तो अभी वो बूढ़े हो गए। मेरे बाल अभी तक काले हैं, एक भी बाल पका नहीं है, क्योंकि मैं एशियन पेंट्स का आदमी हूँ ना, इसलिए। ये बात सही है कि मैं आपको स्कोप बताने जा रहा था, तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। व्हाट इज पेंट? पेंट ये चीज है क्या? ये बोल के मैं मेरा लेक्चर क्लोज करूंगा। मला वेळ आहे का 5 मिनिटं? येस सर. हाँ सर, ह्याचा इम्पॅक्ट कसा होतोय? चांगला होतोय ना? येस सर. येस सर. येस, येस सर. व्हायलाच पाहिजे, कारण उज्ज्वल तावडेंना ती नॅक आहे की लोकांना उभं करायचं एकदम आयुष्यात. परफेक्ट सर. म्हणजे ऍक्च्युली तुम्ही पूर्ण स्कोप सगळ्यांना सांगताय, म्हणजे काय काय करू शकतात, काय होऊ शकतं. आणि नाही, आणि
मला असं आता वाटायला लागलेलं आहे की आम्ही जे आता 5-6 वर्षापासून इन्स्टिट्यूट रन करतोय, तर जे काही कोर्सेस आम्ही रन करतो तर ते वन टाइमच असतात. म्हणजे कोर्सेस म्हणण्यापेक्षा जे आम्ही स्ट्रक्चर्स उभे करतो, बिल्डिंग असेल तर तिला लाईफ पूर्ण आहे, तिच्यात परत रिवर्क होण्यासारखं नाहीये. तुम्ही इंटेरियर केलं परत तिला रिवर्क होणार नाहीये. एकदाच तुम्ही करता, परत तुम्ही 5-6 वर्ष 10 वर्ष तरी त्याकडे काही पाहत नाही. तुम्ही फॅक्टरी उभा करता तर परत त्याच्याकडे आपण पाहत नाही. पण म्हणजे कन्स्ट्रक्शन तुम्ही ऍज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून गेलात तर, पण तेच जर तुम्ही बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जर असाल तर तुम्हाला वर्षाला स्कोप आहे. तेवढ्याच क्वांटिटीचा वर्षाला स्कोप आहे तुम्हाला. रेट पण ऑनगोईंग आहे, ऑनगोईंग. रिकरिंग आहे तो. म्हणजे कुठलाही असू देत, प्लंबिंग असू देत, प्लंबिंग पण एकदा केलं की परत त्याच्याकडे कोणी जात नाही, त्याच्याकडे 20-25 वर्ष काही फॉल्ट होत नाही तोपर्यंत काही जात नाही. इलेक्ट्रिकल पण कोणी 2 वर्षाला असं चेंज करत नाही. इंटेरियर कोणी चेंज करत नाही. पण पेंटिंग काही जण तर असे आहेत की प्रत्येक वर्षी पेंट करतात ते. आणि आता डिझायनर पेंट आल्यामुळे तर प्रत्येकाला स्कोप आहे. प्रत्येक ठिकाणी आहे. सोसायटीज आहेत. जुन्या बिल्डिंग झाल्या की त्यांना 4-5 वर्षांनी तरी त्यांना स्कोप असतोच तो हे करायचा, परत रिपेंट करायचा. कॉर्पोरेट मध्ये तुम्ही जसं सांगितलं, उदाहरण दिलं की इंटेरियर असेल किंवा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मध्ये, तर कॉर्पोरेट मध्ये हॉटेल्स असतील किंवा हॉस्पिटल्स असतील, त्यांना असं जुना पेंट नकोच आहे ना. त्यांना कायम अपडेटेड आणि त्यांचं पॉलिश पाहिजे पूर्ण, त्यांचं प्रॉपर्टी असेल ती. बरोबर. म्हणूनच माझा नेक्स्ट मुद्दा जो सर आहे ना, तो आहे की पेंट कशासाठी, पेंट म्हणजे काय हे आधी बघूया. ओके ओके सर. पेंट आहे तरी काय? पेंट हे 4 घटकांचं मिश्रण आहे. 4 घटक आहेत. पेंट जेव्हा बनला जातो तेव्हा 4 असे घटक त्याच्यामध्ये वापरले जातात. मग पेंटचं काम काय है? पेंट का मकसद क्या है? पेंट का मकसद मैं बोलता हूँ सिर्फ डेकोरेट करना नहीं है। आप मैं जहाँ बैठा हूँ, आप पीछे की वॉल देख रहे हैं, व्हाइट है, बीच में एक ग्रीन स्ट्रिप दिख रहा है, लेकिन कि पेंट का मकसद सिर्फ डेकोरेट करना नहीं है। पेंट का और एक मकसद है, वो है प्रोटेक्शन। वॉल को प्रोटेक्ट करता है पेंट, अपने बिल्डिंग को ऐसा प्रोटेक्ट करता है कि वेयर एंड टेयर से ये अंदर का प्लास्टर या कंक्रीट खराब ना हो, उसमें गैसेस वगैरह जाके वो कंक्रीट वीक ना हो। अभी सर तो अभी सिविल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट चला रहे, तो वो ये इंस्टीट्यूट मुझे मालूम है कि स्ट्रक्चर तो खड़ा किया जाता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि नहीं है। अभी आपने मेटल का एक दरवाजा बना दिया और वैसे ही छोड़ दिया तो वो गंज पकड़ के पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरह से कंक्रीट में जब वो गैसेस तैयार होते हैं ना, तो वो अंदर के वो जो स्ट्रक्चर है, तो अंदर के स्ट्रक्चर को वीक करते जाते हैं। ये प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो पेंट is a coating which decorates and protects the surface. I repeat, paint is a coating which decorates and protects the surface. प्रोटेक्ट भी करता है। हाँ, आपने लाइट के खंबे देखे, रास्ते पे लाइट के खंबे, उसके ऊपर एल्यूमिनियम पेंट लगाया जाता है, वो सिल्वर कलर, वो प्रोटेक्शन है, तो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। कहीं ऐसा मेटल का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा पड़ा है तो उसके ऊपर रेड ऑक्साइड प्राइमर लगाया है, वो रेड ऑक्साइड प्राइमर यानी प्रोटेक्शन के लिए है, गंज ना पकड़े। तो पेंट का मकसद 2 टाइप का है, डेकोरेशन एंड प्रोटेक्शन। तो उसमें है क्या पेंट में? पेंट में 4 चीजें हैं। पहली चीज है पेंट में कलर है, पेंट को कलर होना चाहिए। ग्रीन पेंट, येलो पेंट, रेड पेंट, व्हाइट पेंट, ब्लैक पेंट, हाँ, ये सब कलर्स, वायलेट पेंट, कलर तो होना चाहिए। ये कलर कहाँ से आता है?
तो पेंट में कलर के लिए पिगमेंट डाली जाती है। जिस जिस चीज से कलर मिलता है पेंट को, उसको बोलते हैं पिगमेंट। वो पाउडरी मटेरियल रहता है इसमें, या कभी कभी लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, लेकिन वो कलर्ड है। कलर्ड पिगमेंट, येलो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, ब्लू है, थायोसाइनिन ब्लू बोलते हैं हम लोग। ये सब मैं बताने जा रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये पिगमेंट्स कलर देती है, और कलर, और वो कलर देके सरफेस को ढकने का, सरफेस को ढकने का यानी हाइड करने का की भी ताकत पिगमेंट देती है। मैंने पेंट लगाया और पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो क्या फायदा? आपने कपड़े तो शर्ट पहना है, लेकिन अंदर का दिखाई देता है, अच्छी बात है क्या? गलत बात है। तो ये हाइडिंग की बात है। तो पिगमेंट के से एक तो कलर मिलता है और हाइडिंग भी मिलता है, हाइड होता है, सरफेस चिप जाता है उसमें। दूसरी चीज है वो बाइंडर। पेंट में दूसरी चीज डाली है बाइंडर। बाइंडर एक चिकट मटेरियल, चिकट, स्टिकी। ये स्टिकी मटेरियल पिगमेंट को साथ में लेता है, पिगमेंट को साथ में लेता है, साथ में लेके चिपक जाता है सरफेस पे। चिपकना उसका काम है, क्योंकि वो स्टिकी है। यह है बाइंडर, पिगमेंट बाइंडर। लेकिन पिगमेंट और बाइंडर सिर्फ चिपकेंगे क्या? चिपकेंगे कैसे? उनको, उसको लगाएंगे कैसा? तो उसके लिए उसको पतला तो करना पड़ेगा ना। पिगमेंट और बाइंडर का मिक्सचर जो है उसको पतला करना पड़ेगा। तो पतला करने के लिए सॉल्वेंट डाला जाता है। आपने टर्पेंटाइन सुना है? टर्पेंटाइन, पेंट में टर्पेंटाइन डालते, वो सॉल्वेंट है। वो पेंट पतला करता है। पतला करने से हम लोग पेंट को लगा सकते हैं। तो पिगमेंट है जो कलर देती है और हाइडिंग देती है। बाइंडर है जो एडिशन देता है, एडिशन का काम करता है। बाइंडर हेल्प्स इन एडिशन ऑफ पेंट टू दी सबस्ट्रेट, पकड़ने का काम करता है। बाइंडर ऑल्सो गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ फिल्म। पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट जब इकट्ठा होते हैं, और उसमें कुछ और एक चौथा मटेरियल, चौथा, उसको एक पक्की प्रॉपर्टी रहती है, केमिकल रहता है, वो बहुत कम डालता है। 1 लीटर में सिर्फ 3 ml 2 ml इतना ही डाला जाता है। उसको बोलते हैं एडिटिव। अभी समझो उस पेंट को फंगस ना लगे, या वो क्या बोलते हैं, अलगी ना लगे। अलगी यानी मराठी में उसको शेवाड़ा बोलते हैं, और फंगस को मराठी में बुरशी बोलते हैं। वो काला काला फंगस पकड़ता है, वो न पकड़े इसके लिए एक एडिटिव डाला जाता है, 2-3 ml का, एंटी फंगल एडिटिव। एंटी फंगल एडिटिव। पेंट जब डब्बा खुला रखते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर साय पकड़ती है, स्किन पकड़ती है। वो स्किन जल्दी ना पकड़े, इसके लिए एक एडिटिव डालता हूं मैं, एंटी स्किनिंग एजेंट। ऐसे तरह तरह के एडिटिव रहते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, पेंट में क्या क्या है? पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव। पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव, ये 4 चीजें मिक्स होती है अच्छी तरह से। मशीन में उसको इकट्ठा किया जाता है। मशीन्स बहुत सारी है, बॉल मिल है, सैंड मिल है। मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताने जा रहा हूँ कि उसका मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप कहाँ है। तो ये सब इकट्ठा करके पेंट बनता है। और जब ये, यानी पेंट एक मिक्सचर है ना भाई, पेंट इज अ मिक्सचर। जब हम लोग लगाते हैं, उसका पेंट फिल्म बनता है। जब हम उसको कोटिंग करते हैं, तो उसकी फिल्म तैयार हो जाती है।
जब फिल्म बनती है तब वो सरफेस ढक जाता है, डेकोरेटिव हो जाता है। तो ये जो फिल्म है उसको मैं पेंट बोलता हूँ। जो ड्राई हो गया है, पहले डब्बे में था वो वेट था, हाँ वो लिक्विड था, और जब मैंने लगाया तो वो सूख गया और उसकी एक फिल्म तैयार हुई। उसको ड्राई फिल्म बोलते हैं, डीएफ। और ये डीएफ जितने अच्छे क्वालिटी का बनेगा, ड्राई फिल्म जितने अच्छे क्वालिटी का बनेगी उतने अच्छे क्वालिटी का पेंट रहेगा। तो इतना बस है, टेक्नोलॉजी में और ज्यादा नहीं बोल सकता। इससे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी मैं बारी बारी में बोलूंगा, लेकिन पेंट में 4 घटक है जो जो बोलते हैं ना, घटक मराठी में। और कंटेंट ऑफ पेंट में 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव। चारों को मिक्स करके पेंट बनाएंगे। अलग अलग पेंट्स है, डेकोरेटिव पेंट्स है, प्रोटेक्टिव पेंट्स है, इपॉक्सी पेंट्स है, क्लोरो रबर, रोड मार्किंग पेंट है, फ्लोर कोटिंग। ये एक बड़ा स्कोप है पेंट की लाइन में। फ्लोर पे अभी पेंट लगाने चालू कर दिया, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में फ्लोर पे पेंट लगाते, फ्लोर कोट बोलते इसको। सो ये अलग अलग प्रकार का पेंट अगर बनाना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अलग अलग लानी पड़ेगी। इंडियन पेंट टेक्नोलॉजी में मेरी कंपनी, मेरी यानी अभी तक यहाँ पे है वो, अगर मुझे आप कट लोगे ना मेरे शरीर पे, ऐसा छोटा कट लिया और मेरा ब्लड बाहर आया ना, तो ब्लड में से ऐसे अक्षर आएंगे, एशियन पेंट्स। पूरी जिंदगी में मैंने उस कंपनी को दी है। मैं उनके पहले मालिक के साथ था, मालिक के बेटे के साथ काम किया मैंने, मालिक के पोते को मैं कंसल्टेंट था, और पोते को मैंने कंसल्ट दी है, और वो भी अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे इस कंपनी का अभिमान तो रहेगा, लेकिन मैं हमारे कोर्स में करीब करीब 6 कंपनियां यहाँ पे लेक्चर्स देने को आएंगी। एशियन पेंट्स आएंगी, नेरोलैक आएगा, बर्जर पेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, जोतून पेंट्स का आदमी आएगा, फिर बिरला वॉल केयर, पुट्टी है देखो, पुट्टी मालूम है, पुट्टी लगाई जाती है पेंट में। पेंट लगाने के पहले लेवल करने के लिए पुट्टी लगाई जाती है। तो बिरला वॉल केयर का आदमी आता है। ऐसी कुल मिलके 6 कंपनीज हम लोग बुलाते, 6 कंपनीज के मैनेजर्स है, एग्जीक्यूटिव्स इधर आके डिलीवरी करते हैं। एक एक सेशन में एक एक कंपनी को देता हूँ, क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए, उनके साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए, वो कौन लोग है वो मालूम होना चाहिए आपको। धंधा है अपना, कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं आप लोग। तो ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ। मेरे जो जूनियर्स थे वो अभी मैनेजर बन गए, और मेरी रिक्वेस्ट को वो कभी ना नहीं बोलते, टालते नहीं, आते हैं। अभी कुछ सवाल है तो पूछिए। मैंने स्कोप बोला, और पेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात की। पेंट का धंधा पकड़ो आप, मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा टाइम अभी है पेंट के लिए। सबसे अच्छा टाइम अभी है। कोरोना आया और कोरोना गया, अभी जा रहा है वो, आपको मालूम है। और हमारे पेंट के दुकान में अभी भीड़ होने लगी है, मुझे अच्छा लग रहा है।
मेरा एक व्यापारी है, वो मुझे वीडियो शूट करके भेजता है कि सर देखो मेरे दुकान में अभी भीड़ होने लगी है। ये स्कोप है, ये टाइम है, धंधा करो पेंट लाइन का। अब देखो मार्जिन मिलता है कि नहीं। और बहुत बहुत कठिन काम नहीं है भैया, पेंट करने वाला पेंटर रहता है। आप कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। आपने सिर्फ सुपरविजन करना है, आपने मटेरियल लाके देना है, आपने कंट्रोल करना है, आपने कंसल्टेशन देना है ग्राहक को, और 20% कमाना है। 20% इज नॉट अ बैड मार्जिन। और अगर टेक्सचर और स्टेंसिल करते हैं तो आपको 60-70% के 100% भी मार्जिन मिलेगा। आओ आप, आओ ये धंधे में आओ। मैं जाहिरात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी मेरी उम्र नहीं है जाहिरात करने की। लेकिन मुझे चाहिए कि आप जैसे लोग इस लाइन में आए, बिजनेस करो। क्यों कहा नौकरी पकड़ने की छोटी मोटी, करो। मेरे मेरे मालिक ने बोला था कि मैं 9वीं पास 10वीं नापास हूँ, फिर भी मैंने ये कंपनी खड़ी की है। तो ये बात ध्यान में रखो। उज्जवल भाई मुझे बोले वो कि તમે રિટાયર થશો ને તો આ જવાનોને, જવાન માણસોને તમે ભેગા કરો અને તમે એ લોકોને કહો ધંધો કરો ભાઈ। ધંધામાં જે મજા છે નોકરીમાં નથી। बहुत देर से बोला उन्होंने मुझे। जरा जल्दी बोलते थे तो मैं नौकरी छोड़ के धंधा ही करता था। मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मैंने उनके पांव पे खड़े किए। पुणे के 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े बन गए हैं, अभी उनके पास फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ी है, वो मुझे सर पुकार के, मुझे सर बोलते। मुझे याद है कि मैंने उनको एक अच्छे बिजनेस लाइन में लाया और कमाया उन्होंने। आपको भी कमाना रहेगा, जरूर आइए, एडमिशन लीजिए इस कोर्स में, तैयार होके बिजनेस में आइए। बहुत कठिन काम नहीं है पेंट लगाना, ये प्लम्बर का काम नहीं है, ये पेंट है। एक बार सिस्टम ध्यान में आ गई तो पेंटर को आपने वो सिस्टम से काम करने को गाइड करना है बस, बाकी वो सब करता है बेचारा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, जब पेंटर नहीं आता ना, तैयारी रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आजकल पेंटर मिलने लगे हैं। ये जो वापस गए थे ना यूपी बिहार में, वो अभी धीरे 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 वापस आ रहे हैं। पुणे में बंगाली पेंटर्स है, पुणे में आसाम से बहुत सारे पेंटर आए, बिहार से आए हैं। अभी आजकल मैंने सुना अभी ओडिशा से आ रहे, ओडिशा से। तो मुझे अच्छा लगा, मुंडे सर ने मुझे यहाँ बुला के आपसे बातचीत करने का मौका दिया। यस सर, ये तो स्टार्ट है। हमें तो और भी सेशंस आपके रखने हैं सर। और हाँ होप तो वो सभी लोग डायलॉग पूरा करता हूँ सर, डायलॉग पूरा करता हूँ। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यस यस। मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत दिल खोल के पढ़ाता हूँ, बोर नहीं करता, मजे में पढ़ाता हूँ। नहीं सर, तो ये ये ट्रेलर सिर्फ में ही ट्रेलर मूवी था। कैसे रहेगा ना, वो पता चल रहा है अभी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपने स्कोप से लेके आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग, वो पेंट में क्या क्या होना चाहिए, वेदर के हिसाब से कौन सा पेंट, मतलब अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल सोचता हूँ जरा ज्यादा। मतलब आपने जो बोला कि पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट्स, तो मतलब कोई आदमी वेदर के हिसाब से कौन से वेदर में कौन सा पेंट के लिए क्या ये प्रोपोर्शन डालना चाहिए, ये सभी टेक्निकल चीजें भी आप उनमें बताने वाले हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी ये चीजें देखो, प्रोवाइड पेंट का करें। जो सिस्टम है ना, पेंट की हाँ, सिस्टम है, हाँ, हाँ, अंदर का पेंट जब लगाते हैं, उसकी 6 सिस्टम मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके अलग अलग टाइप की सिस्टम है। ओके। हाँ कई लोग सिर्फ डबल लांबी लगा के उसके ऊपर ठोक देते पेंट,
कई लोग प्राइमर करते हैं, फिर लांबी लगाते हैं, वापस प्राइमर करते हैं, पेंट करते हैं। ये जो सिस्टम्स है ना, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो मालूम होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को जब सिस्टम मालूम है तो पेंटर आपको पगला नहीं बना सकता। यस यस यस, बरोबर है इसलिए ना? मतलब यस यस, कॉन्ट्रैक्टर को मालूम होना चाहिए सिस्टम, अभी अभी इसलिए सर ये अपने, कोर्स करो आप। हाँ यस यस, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये अभी अपने यहाँ पे सर मुझे इंटीरियर डिजाइनर भी है, आर्किटेक्ट भी है, तो मुझे लगता है और सिविल इंजीनियर्स भी है। मुझे लगता है सभी को ये इसका बहुत अच्छे तरह से बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अनटच फील्ड है। मतलब पेंटिंग भी ना, जैसे इलेक्ट्रिकल है, हमारे सिविल इंजीनियर जाते नहीं उसमें डीप में, वैसे पेंटर भी कैसे कर देते हैं कि पेंटर्स भी डायरेक्टली पेंटर को बोल दिया, कर रहे बाबा तुम, उसमें ज्यादा कुछ देखते नहीं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है क्या है, ये सभी चीजें वो कोई देखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो सभी एनालिसिस करने के लिए और हमें डिटेल में पेंट इंडस्ट्री समझने के लिए ये कोर्स हमारा बहुत ही यूजफुल होने वाला है। उसके साथ साथ आपने कह दिया कि सर हम इसमें फैक्ट्री विजिट्स भी रखने वाले हैं, मतलब पेंट के सेमिनार्स भी रखने वाले हैं अलग अलग कंपनियों के। तो उनकी टेक्निक्स क्या है, उनके कौन सी टेक्नोलॉजी लगा यूज करके वो कर रहे हैं, तो इसका अच्छी तरह से मुझे लगता है बेनिफिशियल हो जाएगा सभी लोगों को। और एक है जो आपने कहा कि बिजनेस, तो बहुत अच्छा आपने ये कर दिया, लेकिन वो भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस है ये, क्योंकि बाकी कौन सा भी आप बिजनेस ले लीजिए, सभी को इन्वेस्टमेंट बहुत सारा लगेगा, लेकिन ये बिजनेस में इक्विपमेंट्स और बाकी जो लगने वाला है वो बहुत बेर मिनिमम लगने वाला है, जो कोई भी आदमी ये पेंट इंडस्ट्री में आ सकता है, और जिसको रिपीटेबल बिजनेस, मतलब जो रिकरिंग बिजनेस है, वैसे टाइप का बिजनेस है। जैसे हम चाय को बोलते हैं कि नकदी पैसा आता है, वैसे वो टाइप में हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर कहा जाए तो ये पेंटिंग बिजनेस वो टाइप का है। सही है सर? सही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यस यस, विमल कुमार जैन, जो कुमार प्रॉपर्टीज के मालिक थे, हाँ 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 हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे यस दोस्त यस, थे बहुत अच्छे। तो विमल कुमार जैन और मैं जब चाय पीने बैठते थे, बहुत यंग थे, हम दोनों यंग थे तब, कई छोटे दुकान में चाय पीने बैठते थे। तो उसने बोला, यार आपके धंधे में क्या लगता है, क्या लगता है यार, एक 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट करना है तो 2 पेंटर, 2 पौरे यानी 2 डब्बे रंग के, उधर पे हाँ, हाँ, 2 पेंटर, 2 डब्बे, 2 ब्रश, यस 2 रोलर, एक सीढ़ी और एक घोड़ी, यस, और क्या लगता है बोलो? मैंने सोचा यार सही बात है, सिर्फ इतना करके ये धंधा चालू कर सकता है आदमी। बराबर, और अगर मैं 1 बेडरूम का हॉल किचन फ्लैट पेंट करना हो तो मुझे मेरे मटेरियल के लिए 20,000 रुपया या 10,000 रुपया चाहिए। इतने छोटे कैपिटल में धंधा अगर कोई करना है तो पेंट का ही धंधा है, यस सर, उसमें दिमाग थोड़ी नहीं है। 2 पौरे, 2 पेंटर, 2 ब्रश, 2 रोलर्स, एक सीढ़ी, एक घोड़ी, बस। और वो कास्या और वो बाहर जो है, पड़ा हुआ आपका कुछ। आपका गाइडेंस है तो सब कुछ है, क्योंकि उसके लिए कुछ पीछे टेक्निक भी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल, सभी आप टेक्निक सीखा होंगे होनी सर। चाहिए। जो टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत टेक्निक इम्पोर्टेंट नहीं है, है क्योंकि तो पेंटर आजकल कुछ भी कर सकता है। पेंटर्स बहुत है, लेकिन वो स्किल पेंटर मिलता नहीं है, जो हमें हमें मेरे होना स्टूडेंट्स को चाहिए, मिलता जो स्किल है। पेंटर कोई बनाने चाहिए। कोई कोई कमी नहीं है, हम लोग गाइड करते हैं अच्छी तरह से। Yes, yes. अ, ये मुझे लगता पूरा है ओनर ने ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये अ, खुद सीख के ये सभी चीजें जो है, मतलब अपने लेबर से भी करवा के लेनी चाहिए। एप्लीकेशन कैसे करते हैं, हम डेमो भी लेने वाले हैं सर, बराबर है सर? हम हाँ, कुछ लेकिन पेंट एक एक एप्लीकेशन एक डेमोज दो भी लेने मिनट वाले हैं। 2 मिनट मैं लेता हूँ, क्योंकि आपने यस बोला सर, कि इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट भी अभी के प्रोग्राम में आए हैं यस यस करके। सर, आई एम गोइंग टू टच these 2 topics. One topic is color psychology and यस second topic is color personality यस and third topic is color therapy. सर, कलर के लिए मैं 3 लेक्चर्स ले रहा हूँ।
कलर साइकोलॉजी, कलर पर्सनैलिटी, कलर थेरेपी। अगर आपको शेड्स, अपने ग्राहक को शेड्स का कन्विंस करने हैं, शेड्स आपको रिकमेंड करने, तो ये रिकमेंडेशन कैसे किया जाए वो एक साइंस है। और कलर के बारे में बहुत कम मालूमात होती है लोगों को। कलर टेक्नोलॉजी जो है वो मैं पढ़ाता हूँ 3 सेशंस में, मैं खुद पढ़ाता हूँ क्योंकि उसमें करीब 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये कलर साइकोलॉजी जो है कि कलर की साइकोलॉजी क्या है, क्यों उसको येलो अच्छा लगता है, क्यों उसको पिंक अच्छा नहीं लगता है, ये जो साइकोलॉजी है। तो शायद एक डायनामिक आदमी है तो उसको क्रीमी अच्छा लगेगा, उसको येलो अच्छा लगेगा। जो शांत स्वभाव का आदमी है उसको लाइट ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। ये जो कलर पर्सनैलिटी है ये हम लोग इस कोर्स में ऐड करने वाले। I am very happy that some interior designers are also there. Yes. So you will be benefit definitely. मैं हूँ तब तक, I am now 72 by age. Use my experience and I am at your service. Till the time I am hoping my good health. Okay. Thank you, sir. Thank you very much and God bless. यस सर, थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा अभी सभी के लिए कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो कोर्स है हम ये नेक्स्ट मंडे मतलब 28 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पर्पस ये है कि एक अच्छा पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जिसको अच्छा एक बिजनेस मिले, ऐसे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छा एप्लीकेटर बन सके, जो अच्छा क्वालिटी दे सके, वैसे हमें बनाने हैं। इसलिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसमें कंटेंट सर ने बहुत अच्छी तरह से सभी कंटेंट बता दिए, जो कलर थेरेपी से लेके सभी। उसके साथ साथ हम रेट एस्टिमेट कैसे बनाना है, उसका कॉस्टिंग कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वो भी सभी चीजें उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल डेमोज, जो पेंटिंग के एप्लीकेशन, जो टेक्सचर पेंट है वो कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम यहीं पे अपने इंस्टीट्यूट पे ही कुछ सेटअप लगा रहे, जो आप खुद अप्लाई करके भी देख सकते हैं 2x2 के पीस के ऊपर कि एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए ये सभी चीजों का। मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग रहने वाला है, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी ट्रेनिंग रहेगा। जो भी हमें टूल्स लगेंगे, और मेजर एक है सर ने उसके ऊपर थोड़ा सा और मुझे लगता है कि गाइड करना चाहिए, जो डिफेक्ट्स रहते हैं। जो अब हम ओल्ड वर्क करेंगे, नया वर्क जो करेंगे, तो नए काम में तो हमें सभी एप्लीकेशन मालूम है, लेकिन जो डिफेक्ट्स रहते हैं ना, वो डिफेक्ट्स हमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ओल्ड वर्क्स में जो रहते हैं। उसके लिए हम वाटर प्रूफिंग का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे, लीकेजेस जो होते हैं और उसको एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये जो सभी चीजें हैं, सर ने कहा कि पेंटिंग एज अ प्रोटेक्टर भी है, तो वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है और कितने लिमिट तक प्रोटेक्ट कर सकता है, तो हमें ये भी जानना है। तो ये सभी हमने इंक्लूड कर दिया है ये सभी ट्रेनिंग में। हेलो, हाँ, ये सभी हमने इंक्लूड करते हैं। हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे सभी सभी इसका, साइट प्रिपरेशन कैसे करते हैं से लेके पूरा बिलिंग तक पूरा हम आपको लेके जाएंगे। एप्लीकेशन तो सभी इसमें इंक्लूड है। उसके साथ साथ कंपनी सेमिनार्स रखेंगे, सर ने जो जैसे कहा था कंपनी सेमिनार्स हम रखने वाले हैं। उनके ट्रेनिंग्स रहेंगे 2-3 दिन के, जिसमें उनका सर्टिफिकेट, मतलब आपको इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, इंस्टीट्यूट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ साथ कंपनी का भी ट्रेनिंग अटेंड किया ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये आपको डुअल एडवांटेज हो जाएगा कि आप एक कंपनी से भी सर्टिफाइड एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है करके। कोर्स कंटेंट में और कहा जाए तो सर ने बहुत अच्छी तरह से सभी चीजें एक्सप्लेन की है, लेकिन मैं उसका वैल्यू एडिशन थोड़ा सा एक बोलता हूँ कि जो भी सेशंस रहेंगे, हम रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, और वो आप अगर कुछ सेशंस आपके मिस भी हो जाते हैं तो आप वो रिपीट करके देख सकते हैं। टाइम हमारा इवनिंग में ही रहने वाला है 7 to 9 PM। तो कुछ सेशन आपके मिस भी हो जाते हैं, तो हम वो सेशंस आपको, रिकॉर्डेड सेशंस हम आपको अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, जो अपना इंटर्नशिप ऐप है। इंटर्नशिप ऐप के ऊपर वो सेशंस अवेलेबल रहेंगे जो आप रिपीटेड देख सकते हैं, और वो हम वैल्यू एडिशन आपका बिजनेस स्टार्ट होने तक
मतलब आपको 1 साल के लिए भी हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक्सेस दे रहे हैं। खाली वो आप डाउनलोड करके आपके मोबाइल में रख सकते हैं, कहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, मतलब अपने ऐप के ऊपर ही वो ये होता है, उसका कुछ पायरेसी आप नहीं कर सकते। तो ऐसे एक वैल्यू एडिशन भी है आपको। उसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट है वो मैं यहाँ पे भी मैं शेयर करता हूँ, वो भी है। मैं और एक खाली अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि चैट बॉक्स आपका चेक कर लीजिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, हमने चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वो उतना खाली आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको इसके बारे में डिटेल्स और आगे कुछ जो अपडेट्स आएंगे वो भी आपको पता चलते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है तो ये आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने ये कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि जो अपना मन खुला करता है वो धंधा करता है। अरे एक नंबर सही। जो मन खुला करता है वो धंधा करता है। वो धंधा करता है, सीधी बात है। Yes, yes, yes. જેનું મન સાફ છે ને એને પ્રોફિટ મળે જ છે, પૈસો મળે જ છે, આવે છે પૈસા। Yes, नाहिद सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए हॅलो सर। हाँ ऋषि। हाँ हॅलो हाँ ऋषि पवार सर, बोला। मी ऋषी पवार बोलतोय। हाँ बोलो। बोला। मी नाशिक जिल्ह्यातून बोलतोय। ओके, हाँ। बरं बरं येत्या 7-8 वर्षांपासून सर मी काम करतोय। कोणते काम करता बर है? पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर आहे मी। बर बर। अच्छा, तर आता ग्रामीण भागात कसं असतं सर, की मेजरमेंट हा जो विषय असतो हम्म। तो पार्टीला कळत नाही। बर बर। आणि इकडे ती पद्धत नाहीये तशी, की इकडे रूम बघायचा किंवा बिल्डिंग बघायची किंवा हॉल बघायचा, जे काही पेंटिंग वर्क करायचं असेल तिथे ते बघायचं आणि त्यानुसार आपण डायरेक्ट त्यांना सांगायचे की इतके पैसे होतील। तर बहुतेक वेळेस मग आम्हाला इंजिनियर वगैरे अशा थ्रू काम मिळतं, तर त्यावेळेस आम्हाला मेजरमेंट म्हणजे स्क्वेअर फूट वगैरे ते असतं, तर ते व्यवस्थित समजत नाही। बर तर बरोबर। त्याबद्दलही आम्हाला थोडीशी माहिती मिळाली तर बरं होईल। यस, नक्की सेशन मध्ये ती माहिती असणारच आहे। मी सांगितलं त्यामुळे की मेजरमेंट कसं घ्यायचं, बिलिंग कसं करायचं आणि कोटेशन पण कसं बनवायचं। आणि सरांनी तर अच्छा, तुम्हाला अच्छा. सांगितलंच की जो बोलताय वो धंदा करताय। बरोबर. म्हणजे हां. तुम्ही बोलायला पण काय पाहिजे, त्या टेक्निक्स पण याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत। आपण मेंटरशिप एक म्हणजे याच्यामध्ये देत पण आहोत, जेणेकरून आपला एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप पण असेल सगळ्या जणांचा, जे हो, हो. ज्यांना जे आपण म्हणजे कंटिन्यू आपण बरोबर राहू, जेणेकरून तुम्हाला काही अडचण आली तरी याच्यामध्ये आपण हे असणार आहे। तसंच काही गेस्ट सेशन्स पण आपण ऑर्गनाईज करतोय, जसं की आता पेंटिंग असोसिएशनचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत हं. संजय भोसले सर। म्हणजे अच्छा. एवढी मोठी व्यक्ती, ज्यांचा आज करोडोचा बिझनेस आहे बरं. पेंटिंग मध्येच फक्त। तर अशांचा ओके. एक्सपिरियन्स शेअरिंग असणार आहे। तर याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला पण एक कॉन्फिडन्स येतो आणि एक्सपिरियन्स शेअरिंगमुळे आमचे पास्ट स्टुडंट आहेत यांच्या सर्वांच्या बेनिफिट्समुळे तुम्हालाही नक्कीच त्या पूर्ण सेशनमध्ये बेनिफिट होऊन जाईल। ठीक आहे, ठीक आहे सर. थँक यू. सर सर मी या हे नाशिकच्या माणसाला मी आता एक आन्सर असं देईन, येस सर, येस या सर। कोर्सच्या मध्ये मेजरमेंट ची एक ऑथॉरिटी जे मेजरमेंट कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांचा धंदा फक्त मेजरमेंटचा आहे। तर बरोबर. अशी व्यक्ती येऊन 2 सेशन्स तुमची घेणार आहे, त्यामुळे अच्छा. त्याबद्दल निश्चिंत राहा। ओके हे सर. थँक मेजरमेंट शिकवणारी ऑथॉरिटी येते ती। हो, आभारी आहे सर. थँक्यू। आणखी कोणाला काही विचारायचं आहे? नाहीत सर, तुम्हाला काही मला वाटतं विचारायचं आहे आता? हॅलो। ओके, तुम्ही अनम्यूट करू शकताय तुम्ही। ओके, ठीक है। तो कुछ लोगों को फीस का भी मुझे चैट में कंसर्न आ रहा है, तो फीस के बारे में भी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि ये कोर्स की फीस भी 15,000 एक्चुअली है, लेकिन कोविड के कारण और अभी सभी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी नहीं है उतनी, इसलिए हमने पूरी 50% फ्लैट, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, 50% फ्लैट नहीं है, 8,000 रुपीज़ हमने फीस रखी हुई है। तो ये ऑफर भी हम खाली कल के इवनिंग तक ही दे रहे हैं। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है आप इसके लिए,
तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज से बुकिंग करना पड़ेगा, और बाकी के लिए हम 8 एक दिन का आपको टाइम दे देंगे आपकी पूरी फीस दिया करने के लिए। 1000 रुपीज से आप ये कर सकते हैं। मैडम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देंगी आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, और उसी लिए हमने ग्रुप की लिंक भी दे दी है ताकि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और कल आपको हमारे तरफ से कॉल आ जाएगा। फीस 15,000 एक्चुअल है, लेकिन वो फीस हमने 50% ऑफ की है, वो 7,500 हो जाती है। 500 हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, इसलिए हमने 8,000 फीस रखी हुई है। ठीक है, और ये ऑफर खाली कल 5 बजे तक की है। आपको मिनिमम 1000 से ये करना पड़ेगा। राहुल जी, एनरोल कैसे करना है वो भी मैं आपको बोलता हूँ। मैं एक खाली स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको एनरोलमेंट कैसा है वो पता चल जाए। तब तक मैडम आप कांटेक्ट नंबर्स जो हमारे हैं वो शेयर कर दीजिए सभी के। साहब फीस कितना है आपका? सर 8,000 रखा हुआ है सर फीस ओनली। 8,000। और ये कोर्स ये अभी कल ही तक है क्या ये? ये कोर्स सर 28 से चालू हो रहा है, 1.5 महीने के लिए ड्यूरेशन है इसका, 1.5 मंथ्स ड्यूरेशन है। 5 वीक्स है एक्चुअली, 1.5 मंथ्स भी नहीं, 5 वीक्स ही है। तो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, इवनिंग में 7 to 9 PM ऐसे रहने वाला है सर। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में खाली आपको पुणे में इंस्टीट्यूट पे अपना आने पड़ेगा, और ऑनलाइन भी आप कहीं से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का फीस सेम है? फीस दोनों का सेम है सर, क्योंकि कंटेंट सेम ही है। ओके ओके। यस, इसलिए ऑनलाइन भी आप ये कर सकते हैं। पुणे में आने का ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनका प्रॉब्लम हो जाता है कि पुणे में अभी भी कोविड की सिचुएशन ये है, तो इसलिए थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं। तो आपको ज्वाइन करना है तो हमारा इंटर्नशिप ऐप है, इंटर्नशिप ऐप का लिंक भी मैडम शेयर कर देंगी। इंटर्नशिप ऐप है हमारा, तो इंटर्नशिप ऐप से आपको ज्वाइन करना है। मैं शेयर कर देता हूँ चाहे तो लिंक इसका। इंटर्नशिप ऐप के ऊपर जाने के बाद आपको ये, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। यस, आपको इंटर्नशिप ऐप है हमारा। इंटर्नशिप ऐप के यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा, स्टोर में जाके सर्च करना पड़ेगा बिल्डिंग पेंटिंग टेक्नोलॉजी। हमारा एक्चुअली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी कोर्स आ रहा है। पेंटिंग टेक्नोलॉजी आपको ये सर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप कंटेंट में आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा। अभी ब्रोशर यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारा जो भी कोर्स कंटेंट है आपको ओवरव्यू में यहाँ पे मिल जाएगा। रीड मोर करेंगे आप तो अपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर भी है इंटर्नशिप ऐप सिंबल, यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा पूरा सभी। और आपको फीस है वो 8,000 यहीं पे अभी हमने पूरे फ्लैट कर दी है। 8,000 फीस यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इंटर्नशिप ऐप का लिंक मैं मैडम को बोलता हूँ, आप वहाँ पे शेयर कर देंगे मैडम, लिंक पे शेयर करेंगे। जी थोड़ा टाइम बात करेंगे तो चलेगा क्या? तब भी ऑफर मिल सकता है कि नहीं? हाँ, 1000 रुपीज के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए। वो लिंक है, मैं 1 मिनट ऐप का और इसका दोनों का लिंक शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, और एक ये है इसके लिए कि ये रिकॉर्डेड सेशंस और वो मिलने के लिए आपको ऐप से ही डाउन ये करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैडम ने ऐप का लिंक भी शेयर कर दिया है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक एडिशन और करना चाहूंगा कि हम इसमें और 2 सेशन ऐड कर रहे हैं, जो है आपको गवर्नमेंट के जो टेंडर्स है वो कैसे सर्च करेंगे आप। अगर पेंटिंग के टेंडर सर्च करने के तो वो कैसे सर्च करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत सारा स्कोप है, और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट पेंटिंग करने के लिए भी सोचते हैं। तो मैं वो बताना आपको भूल गया था। तो हम गवर्नमेंट के टेंडर्स जो है ना वो भी कैसे सर्च करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में।
करीबन 160 डिपार्टमेंट्स के टेंडर अपने एक पोर्टल है उस पर आ जाते हैं, तो वो कैसे सर्च करते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपको लिंक सर वही चाहिए मेरे को। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, मेरा नाम अमन वर्मा है, मैं मुंबई से हूँ। यस सर मुझे ये पूछना था कि जो लेक्चर डिलीवर होंगे उसके अंदर लैंग्वेज मराठी तो नहीं रहेगा, होगा ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा ना? ठीक है, चलो आप एक भी आदमी हिंदी रहेगा तो हिंदी इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि सर वो हमारे मराठी मराठी का आदमी सभी हाँ। मराठी लैंग्वेज वाले होंगे ना, वो सब एडजस्ट कर लेते हैं, हिंदी में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ एंड सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आप बोल रहे हैं वो रहेंगे, वो भी उनका भी हिंदी इंग्लिश में ऐसा रहेगा ना? ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना मराठी रिकॉर्डेड में रहेगा? सेशन अभी जो हम बोल रहे हैं ना, वैसे ही सेशन वही सेशन रिकॉर्डेड होंगे, दूसरे कोई ओके अलग से सेशन नहीं मिलेंगे। जो ओके हम क्लासरूम में करेंगे वही सेशंस रिकॉर्डेड होंगे। हाँ ओके ओके। yes. ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में? ठीक है, कोकने जी का मेरे ख्याल से क्वेश्चन का सवाल आंसर दे दिया है सर ने। जो मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट के साथ साथ जो जब भी हमें कोटेशन देना रहता है वो टाइम पे कितना पेंट लगेगा वो भी हम उसमें कवर कर लेते हैं। मतलब उसको रेट एनालिसिस भी कहेंगे कि पेंट मुझे कितना लगेगा, पुट्टी कितना लगने वाला है, तो वो भी उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा कौन है, थोड़ा अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आपको इंटर्नशिप किस में करना है, ये पेंट में करना है या दूसरे अपने जो दूसरे बाकी के कोर्सेस है उसमें करना है? तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो हम रुक जाते हैं। देशमुख सर, आपको कुछ? सुदर्शन? मी आहे अजून इथे, मतलब मैं अभी भी हूँ। यस सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि किसी को कुछ पूछना है तो सर है अवेलेबल अभी भी। यू कैन वेरी क्लियरली आस्क मी विथ ओपन माइंड एंड हार्ट, प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर जी पेंटिंग का काम लेने के लिए भी पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस लगता है क्या गवर्नमेंट में? यस, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है गवर्नमेंट के तो उनको ये लगता है, लाइसेंस लगता है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन आप स्टार्ट करते वक्त कैसे करेंगे तो वो हम गाइड कर देते हैं आपको। लाइसेंस भी इजीली मिल जाते हैं वैसे, क्योंकि पेंटिंग वगैरह ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो क्राइटेरिया रहते हैं वो नहीं चाहिए है उनके लिए। और आप स्टार्ट जेडपी वगैरह ये काम से कर सकते हैं, जेडपी के जो काम रहते हैं वो, तो आपका प्रोफाइल बिल्ड हो जाता है। ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन वो कैसे करना हम वो आपको गाइड कर देंगे सेशन में। ओके सर। आप कहाँ से है सर? सर बॉम्बे से। मैं अभी कुछ दिन पहले आपके साथ कोर्स किया था इसका ई टेंडरिंग का, लास्ट वीक में भी। हाँ, खान बराबर, ठीक है। सर हाँ, ये करना है, लेकिन जरा पैसे का ये है, इसके लिए मैं पूछ रहा था आपसे कि नहीं, बाद में भी किया जा सकता फोन है क्या? कीजिए, कुछ भी ऐसे किसी का भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फोन कीजिए आप, हम ये Okay. कर लेंगे अगर आपको करना है तो। हाँ सर, मेरे को थोड़ा और भी चाहिए था आपसे, कब बात कर सकते हैं आराम से? आप फोन से वो डिजिटल सिग्नेचर्स और ये सब के लिए करना था, आपने बताया था ना कुछ। 10 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं सर। ओके सेशन में नहीं रहूंगा, सेशन में रहूंगा तो मैं आपको बाद में आंसर कर दूंगा। ओके ठीक है, फिर हम अभी रुक जाते हैं। मैं उज्जवल तावड़े सर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दे दिया और ये कोर्स के लिए भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और ये अभी 72 एज मतलब रिटायरमेंट एंजॉय करने का, तो
वो अलग तरह से ये रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं कि एक नई पीढ़ी बना रहे हैं वो भी, उनका जो नॉलेज है वो सभी नॉलेज सभी को शेयर कर रहे हैं। तो मैं उनकी एनर्जी को और सभी पार्टिसिपेंट को भी थैंक यू कहता हूँ। तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं अभी, ठीक है? Thanks a lot, all of you. थैंक यू सर। God bless you. थैंक यू। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू सो मच सर। God bless. सर वो चैट बॉक्स का लिंक उड़ गया मेरे पास में। नहीं सर, आप ग्रुप पे है ना, मैं ग्रुप पे ये कर देते हैं। हाँ ओके सर, कर दे तो अच्छा है।